Today we are going to continue with the topic that is parts of respiratory system. Okay. So in the previous class we have talked about till the bronchi. Now today we are going to continue from that. So after the bronchi, we have to write it about the cavity in which it is not a cavity, the membrane which is covered by the lung. Okay. So that membrane is referred to as the pleural membrane. So this pleural membrane, it is a double membrane structure which have fluid in the cavity of membrane. So what it says कि जो lungs का layer है उसके आजू बाजू जो pleural membrane present होती है, this membrane is having a fluid inside it. इसके अंदर क्या present होता है? Fluid present होता है, right? So which will be providing the protection against the friction. So it will, we can say the function of this membrane is to provide protection against the friction. Now, which is present at both the sides, okay? Next, let's talk about the next one. Over here, see, up till now we have seen that the respiratory system के अंदर जितने भी parts थे, right? Pay attention when you write. In a respiratory system, we have seen that from the nose or from the nostril, external nostril, to the bronchi, the air is carried, right? कहाँ से कहाँ तक? तो external nostril से लेके कहाँ तक लेके जा रहा था? bronchi तक. जो air pass हो रही है, वो different portions के through, different parts के through pass हो रही है, right? So this parts are referred to as the conduction parts. इनको कौन से पार्ट कहेंगे? कंडक्शन पार्ट. कंडक्शन का मतलब क्या होता है? विच इज कंडक्टिंग कि नोज से नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नसल पैसेज, नसल पैसेज से नसल कैविटी, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, आफ्टर दैट ट्रैकिया, ट्रैकिया टू ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और द ब्रोंक्यूल, राइट? तो वहां तक जो ट्रांसफर होता है, तो हियर वी कैन राइट इट ब्रोंक्यूल्स. वहां तक जो एयर पास करने के जो पार्ट्स है, तो ये सारे पार्ट्स को क्या करते हैं? कंडक्शन पार्ट्स. The parts which are only involving in the conduction of air, जो खाली किसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? कंडक्शन ऑफ एयर. ठीक है. अब ये कंडक्शन कहलाएंगे. तो जो रिमेनिंग है, कौन सा रिमेनिंग है? Which parts is remaining? Bronchioles is there. Alveoli is remaining. तो alveoli का नाम क्या होगा? Yes. So over here जो alveoli है, so alveoli will act as exchange site. Exchange site for what? For gases, right? From lungs to blood. lungs से blood में जो गैस ट्रांसफर करना है, उसको ट्रांसफर करने के लिए जो साइट प्रोवाइड होता है, वो कहाँ से होता है? alveoli से होता है. ठीक है. So alveoli act as an exchange site for the gases from lungs to blood. Now what is alveoli? So alveoli is a irregular shape, irregular vascularized bag like structure which is present at the terminal region. It is present at the terminal. Okay. So over here, bronchiole alveoli क्या है? तो alveoli जैसे कि ये bronchioles है, last one. उसके पास ऐसे irregular shape का bag
ठीक है, which will be providing the medium. अब यहाँ से एयर कैसे पास होगी बेटा, फर्स्ट पे अटेंशन over here, then you write. Then so अब एल्वियोलाई के बाद ये एयर कैसे पास होती है, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, एल्वियोलाई जहाँ पे है उसके साथ सारी ब्लड वेसल्स कैपिलरीज जो होती है वो अटैच होती है, ठीक है। सो दिस कैपिलरीज विल बी ट्रांसफरिंग द गैसेस, यहाँ से इन दोनों के बीच में जो मीडियम है स्पेस प्रेजेंट है, फिर यहाँ से गैसेस को स्पेस के अंदर ट्रांसफर करेंगे, फिर वो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन इट विल बी एंटर्ड टू द ब्लड कैपिलरीज एंड फ्रॉम देयर द ब्लड कैपिलरीज विल बी सर्कुलेट द ब्लड inside our body with the help of which system? Circulatory system. कौन सा सिस्टम से? Circulatory system. तो हमें खाली किसके ऊपर फोकस करना है, हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर एयर कैसे जाती है, ठीक है। We'll just talk about that. इसके आगे नहीं बात करेंगे, पूरे चैप्टर में खाली इतना ही बात करना है, और कि कैसे वो ट्रांसफर होगा, how it will be entering to blood. Okay, let's see. और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है, वो कैसे रिमूव होगा। ओके, सो इट इज एल्वियोलाई एंड इट इज ऑफ नंबर्स ऑफ एल्वियोलाइज आर प्रेजेंट ओवर हियर, बहुत सारी एल्वियोलाई यहाँ पे प्रेजेंट होती है, राइट। नंबर ऑफ एल्वियोलाई दैट इज द 750 मिलियन ऑफ एल्वियोलाइज आर देयर, सो टोटल 750 मिलियन एल्वियोलाई इज प्रेजेंट इन लंग्स। लंग्स के अंदर इतने एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगे, जो आपको क्या प्रोवाइड करेगी, इट विल प्रोवाइड द साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द मेजर पोर्शन और द मेजर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर लंग्स। लंग्स क्या होते हैं, तो लंग्स आर दीज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसको क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, वेयर इज इट इज लोकेटेड, इट इज लोकेटेड इन द, सबसे पहले काम करो, स्टॉप राइटिंग एवरीवन, कीप योर पेन डाउन, पे अटेंशन ओवर हियर, आई विल गिव यू टाइम टू राइट, सो प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर फर्स्ट। सो इट इज रिफर्ड टू एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्या कहेंगे इसको, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। किससे प्रेजेंट होते हैं, तो इट इज इन अ पेयर, सो इट इज इन अ पेयर, पैर में प्रेजेंट है, जिसको हम ये लिखना जरूरी नहीं है, पर वी कैन राइट इट इज अ राइट एंड लेफ्ट लंग, राइट, राइट एंड लेफ्ट लंग। यस्टरडे वी टॉक अबाउट दैट कि राइट एंड लेफ्ट लंग के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस प्रेजेंट है। क्या डिफरेंस प्रेजेंट है, तो राइट लंग जो होता है इट इज ब्रॉड एंड दिस वन इज थिन, नैरो होगा, ब्रॉड का हम लोग नैरो लिखेंगे, सो इट इज नैरो। कैसे, तो जो राइट वाला लंग है, जो राइट वाला लंग है वो थोड़ा सा ऐसा ब्रॉड है, ब्रॉड रीजन में, और ये जो है लेफ्ट वाला इट इज लिटिल बिट नैरो, ठीक है। अब कैसे, देखो ध्यान दो, जो ब्रॉड है यहाँ पे इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, तो ये वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, ठीक है, इतना पतला भी नहीं होता है ये, बट इट इज ओवर हियर कि राइट वाला जो होता है वो लेफ्ट वाले से थोड़ा सा मोटा ज्यादा होता है, मतलब ब्रॉड ज्यादा होता है, और ये कैसा होता है, थिन होता है, ठीक है, पर दोनों की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो सेम है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वी नो दैट कि जो लंग्स है इनके बीच के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे जो कैविटी प्रेजेंट है वहां पे हार्ट प्रेजेंट होता है, राइट, हार्ट इतना ही होता है हमारा, पर स्टिल इट इज इन द टिल्टेड फॉर्म होता है, तो वो किसकी तरफ ज्यादा मूव किया हुआ होगा, लेफ्ट लंग की तरफ, राइट। तो हार्ट भी कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, हमारा लंग भी कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, तो दोनों के अंदर दोनों को फ्रिक्शन ना लगे, इसकी वजह से थोड़ा सा जो है लेफ्ट वाला वो क्या होगा, थोड़ा सा पतला होगा, उससे थोड़ा सा दूर रहेगा, सो दे विल नॉट बी एबल टू फाइटिंग नहीं कर सके एक दूसरे के साथ, राइट, सो दे बोथ विल गेट अ स्पेस, राइट, एंड विल नॉट हैव अ फ्रिक्शन अमंग देम, राइट, दैट्स व्हाई दिस इज द डिफरेंस, बट दोनों की जो कैरिंग कैपेसिटी है दैट इज सिमिलर, okay, the number of alveoli, the parts which are there, they are same in this, okay, so now this one अब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो they are situated into the location, हम कह सकते हैं कि they are situated in thoracic cavity, it is situated in the thoracic cavity, thoracic cavity जो है
कैविटी कैसे बनी होती है? तो thoracic cavity is made up of consist of, you can write it, or made up of, can anyone tell me कैसे बनी होती है thoracic cavity? कौन सा पार्ट्स thoracic cavity में आएंगे? ओके, लंग्स है, हार्ट भी आएगा। ओके सिंपल, मैं आपको बता दूं क्या क्या है। देखो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये लंग्स है, ठीक है, सपोज कि दिस इज द लंग। ओके, अब कल हमने बात की थी इसके बारे में कि यहाँ पे ये पूरा ऐसा केज जैसा है, राइट? उस केज को हम क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिब केज आ गया, ठीक। अब ये जो रिब केज है ना, तो हमारे ये जो रिब है, तो टोटल वी हैव 12 रिब, हमारे पास 12 रिब होती है, ठीक है। अब वो 12 में से 2 तो ऐसे हवा में होती है पीछे की तरफ में, और 10 जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। और ये सारी की सारी 10 ऐसा नहीं है कि बंद ऐसा बॉक्स नहीं है पूरा, ऐसा नहीं है। देखो इट्स नॉट लाइक दैट दिस इज द होल बॉक्स लाइक दिस, ऐसा बॉक्स प्रेजेंट नहीं है। तो कैसा होगा? ऊपर से ऐसा प्रेजेंट है और एक तरफ से वो नीचे से ऐसा ओपन अप हो जाता है, ठीक है। कैसे ओपन अप होगा? तो इफ यू सी दैट 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब ये जो 7 है ना, तो 7 के साथ तो ये एक ऐसा पूरा रिब बनेगा, और जो 7 है उसके साथ ही 8 9 10 ऐसी अरेंज होती है। तो बीच में क्या होगा? यहाँ पे गैप क्रिएट होता है, ठीक है। So this is our skeletal system. We are not going to study about skeletal system. We just have to see where the lungs are situated. Okay. So look at this. So as we were talking about, कि this is referred to as a head region. This is the neck region. This is thorax. जहाँ पे क्या present है? पूरा rib cage. जहाँ पे पूरा rib cage cover हो जा रहा है, it is referred to as a thorax, right? And the lower region, rib cage के नीचे ये जो region है, जहाँ पे stomach वाला portion पूरा present है, इसको क्या कहेंगे? Abdominal region. क्या कहेंगे? Abdomen. And after the abdominal, this region is referred to as a pelvic. What is it? Pelvic. And pelvic के नीचे क्या आपके limbs, हाथ पैर होते हैं हमारे, right? The lower limbs we can say that. Now over here, what we are talking about what is thoracic cavity consist of. तो thoracic cavity के पास क्या क्या चीजें और वो किससे बना होता है? तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, so over here we can see that this is the rib cage. क्या है? Rib cage. अच्छा, अब rib cage है, रिब केज किसी से अटैच्ड है, किससे अटैच्ड होगा? तो रिब केज इज अटैच्ड टू द बैकबोन। बैकबोन को क्या कहते हैं हम लोग? सो रिब केज जिससे अटैच्ड है, तो दिस इज बैकबोन इज रिफर्ड टू एज अ वर्टिब्रल कॉलम। क्या कहेंगे इसको? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ओके, नाउ हियर जो बैक साइड होता है, जो बैक बताता है, उसको डोर्सल साइड कहते हैं। कौन सा साइड कहेंगे? और जो फ्रंट होता है, फ्रंट साइड, उसको कहा जाता है वेंट्रल। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वेंट्रल। ओके, सो ओवर हियर कैन यू टेल मी thoracic cavity किससे, डोर्सल साइड किससे बनी हुई है? डोर्सल साइड में क्या प्रेजेंट है thoracic cavity के पास? क्या प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम। क्या प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। सो वी कैन राइट इट ओवर हियर, the thoracic cavity is consist of, तो consist of what? At the dorsally it is vertebral column. Okay, so it consists of dorsally, dorsal side जो है, और dorsally it is vertebral column. Okay, फिर ventrally, तो ventral side में क्या present है? You can ventral side, you can write it dorsal side. तो ventral side में क्या present है? What is present in the ventral side? जो rib cage है, अच्छा rib cage हम लेंगे side by side. क्यों side by side लेंगे? क्योंकि ये देख रहे हो आप, rib cage जिससे अटैच्ड है, ये जो बोन है, जो chest bone जिसको कहते हैं, right? वो chest bone से जो rib cage अटैच्ड है, उसको हम कहते हैं sternum. क्या कहेंगे? Sternum. So ventrally it is joined by or covered by sternum. किससे covered है? Sternum. समझ में आई बात? It is ventrally it is covered by the sternum. थर्ड वन मतलब क्या होगा? साइड। तो साइड बाय में हमने जब लंग्स का सेक्शन देखा था, डायग्राम देखा, तो साइड में हमने रिब केज ड्रॉ किए थे, तो वी हैव टू राइट इट, साइड इज कवर्ड बाय रिब केज, ठीक है। अब क्या बाकी रहा?
which portion is remaining now? आगे पीछे साइड हो गया, अब क्या बाकी है थोड़ा सा कैविटी में? अदर वाला, मतलब दिस इज लोअर वन, नीचे का रीजन है, राइट? डाउन साइड में क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? स्टमक प्रेजेंट है, राइट? नो, द अनदर पोर्शन इट इज द लोअर रीजन। तो जो लंग्स होते हैं, तो लंग्स के नीचे का पोर्शन जो है एब्डोमिनल रीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? वहां पे प्रेजेंट होता है डायाफ्राम। तो लोअर साइड इट इज डायाफ्राम, ठीक है? क्या प्रेजेंट है? डायाफ्राम प्रेजेंट है। आई बात समझ में? सो व्हाट इज इट? तो पूरी थोरेसिक कैविटी ये चार रीजन से बनी हुई है। डॉर्सल साइड में क्या प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट है? स्टर्नम। साइड में क्या प्रेजेंट है? रिबकेज। एंड लोअर रीजन में क्या प्रेजेंट है? डायफ्राम। तो लंग्स जो होते हैं इतनी प्रोटेक्टेड साइड में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आई बात? तो पूरा ये जो है, ये जो बीच में गैप दिख रहा है, इस गैप के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो लंग्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो इसको यहाँ पे स्पेस मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की। आ रही बात समझ में? सो over here we can write it like this, that so thoracic cavity is consist of is dorsally it is vertebral column, ventrally it is sternum, side it is rib cage, lower side it is the diaphragm, where the lungs is situated. जहाँ पे क्या होता है? lungs situated होता है। so lungs get protected by thoracic cavity, वो thoracic cavity से protection उसको मिलेगा, ठीक है? आ रही बात समझ में? got it? okay, fine, write it down. Lungs provide the major site for gases to diffuse inside it, right? So over here we can write it in that it is a vascularized bag which is providing the major site for the exchange of gases, okay? Because the major one lungs के अंदर भी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से होगा, right? okay, so we can say it is the situated, we have seen the location, and it gets protected from all four sides by the thoracic cavity, okay? so it gets protected by from all the four sides. Write it down, you have written? Okay, fine. So this is only about the lungs. Now let's move to the another topic. You write it quickly. So Raman, let's so see major sometimes अगर मूवी देखने भी जाते हैं या कहीं पे in a pictures as well, you might have seen that the lung color is which color? Pinkish or reddish in color, right? So यहाँ से identify कर सकते हैं, it is the extra one which we are telling you that lungs अगर healthy है कि नहीं है वो कैसे identify होता है? तो lungs if it is pinkish or reddish in color, that means it is a healthy lungs, okay? And those who continuously having a smoking, tobacco chewing and like continuous cigarette smoke करते हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? तो that lung will become dark in color, वो blackish color के हो जाते हैं। तो वहां से आइडेंटिफिकेशन हो सकता है कि lungs is healthy or not, right? So we can write it simple, healthy lungs are, this is not given in your NCERT, that is just for general knowledge. So healthy lungs are pinkish or reddish in color. Now reddish, that doesn't mean it is a red in color, okay? Reddish, the shade which we talk about, it is a reddish in color. And or the diseased or affected lungs, unhealthy, you can write it opposite of healthy, unhealthy. Dark or blackish. Due to the deposition of whatever they are doing, if they consumption of the tobacco or cigarette smoke, it will be blackish in color, okay? That is
is consists of two different processes, or it is having two different processes. It includes two processes: inhalation and exhalation. The definition of inhalation means intake of air inside the body from atmosphere to body, we can say. So we can write it intake of air or intake of atmospheric air from atmosphere to body, or exhalation, that means release of air from body to atmosphere. Okay, now, so there are certain conditions. Intake of atmosphere, atmospheric air from the atmosphere to body, that is inhalation. Exhalation, release of air from the body to atmosphere. Now there are certain conditions in which the air will be entering to the lungs and air is coming out of the lungs. So what are the conditions, or what type of situation should be there for the intaking of air? Okay, now मुझे ये बताओ कि जब हम बलून को ब्लो करते हैं, तो ब्लो किए हुआ बलून जो है उसके अंदर हम लोग एयर अगर ब्लो करते हैं तो व्हाट विल हैपन? when you blow the air in the balloon which is already blown, so what will be happening? It will burst. Why? Excessive air, right, उसकी कैपेसिटी के बाहर है, ठीक है. और अगर बलून में से एयर निकाल देंगे तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, ठीक है. अब बात क्या हो रही है, देखो. अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो हमारी बॉडी में होता है, विच इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इनहेलेशन किया, एक्सहेलेशन हुआ, इनहेलेशन किया, एक्सहेलेशन. इट्स नॉट लाइक दैट कंटिन्यूअस वी आर डूइंग इनहेलेशन एंड एक घंटे के बाद हम लोग एक्सहेलेशन करेंगे, ऐसा नहीं होता है हमारे साथ, राइट. सो व्हेन इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन यू टेक एयर इनसाइड. सो कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है जिसके थ्रू एयर अंदर ट्रांसफर होगी? तो हमें पता है कि अगर बलून खाली होगा तभी उसमें एयर ब्लो कर पाएंगे. तो हमारे लंग्स के साथ भी ऐसा होगा, राइट. तो ओवर हियर एयर हमारी बॉडी में जो ट्रांसफर होती है, इट इज ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ग्रेडियंट. कैसे ट्रांसफर होती है? प्रेशर ग्रेडियंट, राइट. प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? तो सपोज मैं आपको एक सिचुएशन बता रही हूँ. अगर एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसका प्रेशर ज्यादा है, इंक्रीज, और इट इज मोर, ठीक है. तो लंग्स का प्रेशर कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए. क्यों लो होना चाहिए? अगर अच्छा, सबसे पहले ग्रेडियंट क्या होता है? व्हाट इज द ग्रेडियंट? particles. It will provide the amount of particles which are there. Okay, we have talked about that. Transportation के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा concentration gradient. What does concentration gradient mean? Solid present in the solvent moves from higher concentration to lower concentration. Very good. So उसमें बात हो रही है concentration की, कि कौन सा gradient की बात हो रही है? concentration कि solute का जो concentration है solvent के अंदर वो ज्यादा है तो वो move करेगा higher से lower में, right? Okay. Now over here we are talking about pressure gradient. Pressure of whom? Pressure of gases. Pressure of gases. तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है उसका जो प्रेशर है, तो उसके ग्रेडियंट की वजह से वो मूव करता है इनसाइड एंड इनसाइड से आउटसाइड. अब एटमॉस्फेयर अगर एयर को इनहेल करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? लंग्स का प्रेशर जो है वो होना चाहिए लो, तभी वो एटमॉस्फेयर से एयर अंदर डिफ्यूज हो पाएगी, राइट. क्योंकि अगर लंग्स का भी प्रेशर ज्यादा है, जैसे बलून की तरह कि वो ऑलरेडी ब्लोन हुआ है और ब्लोन होने के बाद उसके अंदर हम लोग एयर डालेंगे, व्हाट विल बी हैपन? इट विल बर्स्ट. हमारे लंग्स बर्स्ट नहीं होते हैं, और कहने का मतलब क्या होगा? इट विल नॉट एक्सेप्ट, द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस विल नॉट बी अकर, राइट. सो ओवर हियर प्रेशर ग्रेडियंट, तो किसके ऊपर? तो वी कैन से दैट द प्रोसेसेस दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज वर्क ऑन प्रेशर ग्रेडियंट. ओके, so
inhalation and exhalation will work on or depend on, you can write work on for you, or depends on pressure gradient of gases. कहाँ पे तो gases present in atmosphere and in the world. क्यों ऐसा? इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि inhalation and exhalation is work on or depends on the pressure gradient of gases present in atmosphere and in the body. क्यों? क्योंकि inhalation में हम लोगों को atmosphere से body में ट्रांसफर करना है, exhalation में body से atmosphere में ट्रांसफर करना है, right? तो इन दोनों के ऊपर ये present होगा, right? Okay. Now this one, the pressure gradient of gases will be deciding that which type of material or which gases, how the gases will be entered to the body, right? So let's see. According to pressure gradient, over here, during inhalation or during the process of inhalation, atmospheric pressure or atmospheric gradient or pressure is more than, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दो, लंग्स के लिए दूसरा वर्ड यूज होता है और लंग के लिए दूसरा वर्ड यूज होगा पल्मोनरी. क्या होगा? पल्मोनरी. क्या होगा? पल्मोनरी. ठीक है, इसके लिए नया वर्ड यूज होगा कौन सा? पल्मोनरी वन. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर देन, पल्मोनरी है तो पल्मोनरी दैट इज द लंग्स. अब लंग्स के अंदर की बात हो रही है, इनसाइड द लंग, कि सपोज कि दिस इज द लंग, तो इसके अंदर की प्रेशर की जो बात हो रही है उसको हम कहेंगे इंट्रा पल्मोनरी. क्या कहेंगे? इंट्रा पल्मोनरी. So over here what we are going to write, कि during inhalation the atmospheric pressure is more than intrapulmonary pressure. कितना? intrapulmonary pressure. समझे? ठीक है, चलो एक्सेलेशन में कौन बताएगा मुझे? एक्सेलेशन के लिए कौन बताएगा? ड्यूरिंग एक्सेलेशन व्हाट विल बी हैपन? Great. So during exhalation what will be there? Azim said, Azim बताएगा. प्रेशर ज्यादा होगा इंट्रापल्मोनरी. Okay. कम होगा. प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा? कम. किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. Okay, fine. What's the name? Yes, Arfaq. क्या बोला मैंने कि देखो मैं यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ कर दूँ. We'll see that what will be the changes. Diagram is given in your NCERT. Okay, suppose कि ये फनेल जैसे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो है आपका लंग. ठीक है, यहाँ पे आपकी आ जाएगी मेम्ब्रेन, नीचे आ जाएगा डायाफ्राम. ठीक है, अब ध्यान दो. तो अगर फर्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, इधर आएगा रिकेज, दिस इज द रिकेज रीजन. ओके, दिस इज डायाफ्राम. नाउ टेल मी, ये पूरा थोड़ा सा कैविटी का ये रीजन बनेगा हमारा. मैं एक ही ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, अब ये जो थोड़ा सा कैविटी है, द फर्स्ट सिचुएशन इज, व्हाट इज द फर्स्ट सिचुएशन एंड व्हाट चेंजेस आर अकर. सो इनहेलेशन हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? मोर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? मोर. ठीक है, अब ये एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो यहाँ से यहाँ अंदर आ रहा है. ठीक है, दिस इज
क्या चेंजेस हो गया आप ये बताओ। एक्सपांड हो गया। सबसे पहले लंग्स फूल गए हैं, ब्लोन हो गए। ओके, लंग्स के ब्लोन होने से क्या होता है, क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। उस प्रेशर क्रिएट से क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कीप योर राइट हैंड ऑन योर चेस्ट, take a breath. Now tell me what is the changes. Release it. Now tell me what is the change you can feel. एक्सपांड चलो सबसे पहले उर्वेश एक ही पार्ट बताओगे। यस, the volume जो होता है वो increase हो रहा है, मतलब expand वाली feeling आती है। ओके, एक्सपांड वाली फीलिंग आती है। अर्फिया, व्हाट डिड यू फील, is expanding. इज इट एक्सपांडिंग। ओके, जेड तुम्हें कोई नया फील हुआ कुछ? अच्छा, रिलीज तो एक्सेलेरेशन में किया हमने। हाँ, हमने इनहेलेशन किया। अब देखो क्या हो रहा है जब हमने इनहेल किया, व्हाट विल बी हैपन व्हेन यू इनहेल, योर लंग्स जो है उसके अंदर एयर डिफ्यूज हुआ, द एयर ब्लोन इनटू द लंग्स, लंग्स विल बी एक्सपांड। लंग्स एक्सपांड होगा तो थोरेसिक कैविटी में जितने भी रीजन्स है, तो जो रिब है अपनी पोजीशन से ऊपर की तरफ मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा, ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि वो नीचे है अभी। तो क्या लग रहा है हमें कि ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, ठीक, वो ऊपर की तरफ आ रहा है। फाइन, ओके। अब हमें सभी चेंजेस देखने हैं। वर्टिब्रल कॉलम विल बी रिमेन एज इट इज, वो कहीं पे चेंज होगा नहीं, वो एज इट इज होगा। तो किसकी वजह से कहां चेंजेस आ रहे हैं, सो व्हेन देयर इज अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर देन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, लंग्स एक्सपांड। ठीक है, लंग्स एक्सपांड होगा तो वॉल्यूम ऑफ इसकी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, राइट। सो व्हाट विल बी देयर, वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity will be increased, thoracic cavity increase, right। अब इसके नीचे है डायफ्राम, क्या दिया है, डायफ्राम। तो डायफ्राम का क्या होगा, it will move in the upward direction, it will move in the upward direction। समझ में आ रही बात। तो डायफ्राम become dome shape, क्या बनेगा, डायफ्राम जो है वो become dome shape। अब डोम मतलब पूरा का पूरा डोम नहीं हो जाएगा, बट इट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आई बात समझ में। तो क्या चेंजेस हुए देखो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे कि ज्यादा होगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लो होना चाहिए ड्यूरिंग विच प्रोसेस, ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो इनहेलेशन में क्या क्या चेंजेस हो आ रहे हैं, तो ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हाट विल बी हैपन, लंग्स एक्सपांड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू diffusion of air, due to diffusion of atmospheric air। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर क्या हो जाएगी, अंदर डिफ्यूज हो जाएगी, राइट। व्हाट विल बी द चेंजेस अगर इन द वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity, the volume of thoracic cavity will be increased, the volume of thoracic cavity increases, okay। Fine. Then we can write it, the diaphragm becomes dome shape. So diaphragm becomes dome shape. ठीक है, और it will move in the upward direction, you can say that। आई बात समझ में। ये ऐसा क्यों होगा, अजीम ध्यान दे देना वापस से, क्यों होगा, अगर इसका वॉल्यूम, ये ऑलरेडी इसमें हवा कम होगी तभी हम एक्स्ट्रा हवा उसमें भर पाएंगे, अदरवाइज ऑलरेडी ब्लोन होगा तो उसके अंदर हम एयर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात। चलो अब बताओ अपोजिट वाला, अपोजिट में क्या होगा, एक्सेलेरेशन में क्या होगा, और प्रेशर कम होगा तो क्या हो जाएगा इधर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो वी कैन राइट इट कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर शुड बी lower, pressure is lower than whom, intrapulmonary pressure। अच्छा चलो अब ध्यान दो यहाँ पे, सी अब ये जो मूवमेंट हो रही है ना, जैसे मैंने बोला कि रिबकेज का लिखा नहीं आपने, नहीं लिखा, रिबकेज मूव इन द अपर डायरेक्शन, ये इसमें लिखा नहीं है हमने। फर्स्ट विल फिनिश इन इसका फिनिश कर देते हैं। ओके,
कि जब इनहेलेशन होता है तो रिब केज अपवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इसको मूवमेंट करने के लिए मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन इन्वॉल्व होता है? मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। सो फॉर द मूवमेंट ऑफ दैट वी कैन राइट इट ओवर हियर कि फॉर द मूवमेंट ऑफ expanding and relaxing in the lungs will be done by the diaphragm as well as internal and external intercostal muscles. क्या है? Internal and external intercostal muscles. Okay. So that point you write it over here. Then we'll go for it. So writing over here. If you have a line, then you write it over there because it needs to be added over here. So we can say that the movement of expanding and relaxing of lungs is carried out by diaphragm and external and internal intercostal muscles. Okay? Okay? Expanding and relaxing of lungs is carried out by diaphragm and external and internal intercostal muscles. Clear? Yeah? जगह नहीं है तो you can write it in there. Continue उसमें भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. If you have the space over there. Okay, चलो. Diaphragm become dome shape and rib cage will move in the rib cage and sternum. क्योंकि sternum भी साथ में ही ना rib cage के. Will move in the upward direction. Upward direction by intercostal muscles. See, rib cage, right? The ribs के बीच में, the ribs are not at all separated. इनके बीच में muscles present होते हैं, which helping the ribs to contract and not ribs is contracting and relaxing, but वो muscles जब contract and relax होते हैं तो ribs cage के अंदर क्या होने लगता है? Movement आने लगती है, right? So now what will be happen when we inhale? जब हम inhale करते हैं तो क्या क्या चीज मूवमेंट कर रही है? हमने कहा डॉम शेप का क्या हो जाएगा? डायफ्राम डॉम शेप का हो जाएगा, ठीक है? When you inhale, rib cage will be moved up. अब rib cage move कर रहा है तो sternum के साथ ही तो rib cage attached है, तो sternum will be also moving in the upward direction, right? So intercostal muscles are present between the ribs, which will be providing the flexibility to move upward and downwards. और the main region में वापस अपनी position पे आने के लिए उसको flexibility provide करेगा. Got it? Yes. So this changes will be there. Then ये चीजों से भी questions आते हैं कैसे कि what all will be the changes occur during inhalation and exhalation in the different parts of the thoracic cavity. Okay?